तीव्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्ये चित्तास्थितामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितहासं वदामि राधां करुणावराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं करो। संविदा दशनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभ जन्म जन्मने मदेश्वरी प्रियं प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलुलुसटापद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न भयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचे ब्रह्मं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रणतपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगद अद्वाचा जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुतार्थे अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अङ्गश्यामलविछटा वन्दिकितेन्द्रीवरं जड्डं जाच गुरुरुचिशं पट्टम्बरश्रिया वृन्दावननिवासं हितरसद्धामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरज्जलो भुजं ध्यायंस्तु दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणां ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी उधर क्या हो रहे हैं? आपने भी दो बारी महाराज जी पूछ चुके हैं आपके बारे में। महाराज जी दो बारी पूछ चुके हैं आपके बारे में। नहीं उधर है हो रहे क्या अभी? नहीं अभी कुछ देर ऊपर आरती हो रही है, संध्या आरती हो रही है। आरती के बाद कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। वैसे वो सोच रहे थे कि आप सब लोग आएंगे तो कथा होगा।
अभी आरती हो रही है ना, अभी आरती हो रही है। आरती के बाद हम चलेंगे। ठीक? थोड़ा यहाँ पर महात्मा थोड़ा बल देता हूँ। First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet to my Gurupad Padma. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam Lotus Feet Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaurabanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakas Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Causeless mercy of Guru and Gauranga, now we have come in Jagannath Puri. This place is called Chakra Tirtha. Chakra means is what? Chakra means circle. Tirtha. Tirtha means pilgrimage place. The pilgrimage place of circle. As like Sudarshan Chakra, Nisingha Chakra. That Brahman, he very nicely and elaborately glorified about Nil Madhav. What is his name? Nil Madhav. Nila Madhava Katha. Sankra Chakra Gada Padmadhari Nil Madhav Katha. How is beautiful the form of Nil Madhav, his hands, legs and everything very nicely he explained. So for this regard, king completely absorbed to listen the glories of Nila Madhava. And then after few minutes that Brahman disappeared. No one knows where he has gone. कुछ समय के बाद ब्राह्मण कहाँ गायब हो गए किसी को पता ही नहीं चला. Then king and he forgot where is the Nil Madhava and how will take darshan to him, because that Brahman told in the assembly house about the glories of Nil Madhav. If you once take darshan to Nil Madhav, then you will deliver from this material world. बोले नील माधव के एक बार कोई दर्शन करते हैं वो संसार से वो मुक्त हो जाता है. And he also glorified very beautiful pastimes of Nil Madhav in this way. But when Brahmana disappeared, then king became very upset. Oh, I did not ask where is Nil Madhav. Where I will get take darshan to Nil Madhav. I did not ask to him. Then king called all his associates Parikar, and king gave instruction to all his Parikar and Antaraj, you have to go the four direction and find out where is the Nil Madhava. But all you have to return back within 2 months. 2 महीने के बाद 2 महीने के अंदर आप लोग सब समाचार लेकर के लौटे. ये बात है. So some persons they also went eastern side and some also went north, south and west in this way. But finally king royal priest Raj Purohit, his name Vidyapati. Vidyapati, he proceeded to search in east and going. So others, his messengers, they returned back within 2 months, but they did not find out where is the Nil Madhav. But Vidyapati, he was going in eastern side. And 2 months passed, but he did not return back. Then king became very upset. What to do? And without taking darshan to Nil Madhav, I can't to survive my life.
But he is thinking, my royal priest, Raj Purohit, Vidyapati, must be he. Find out where is the Lord Nilamadhava. So Vidyapati, once he was going, then he came very close to an ocean. This thing. Then one day, and midday, he became very thirsty. एक दिन दोपहर के समय वो बहुत तृष्णार्त हो गया, प्यास लगा उनको. Then he saw one Sabarpalli. Sabarpalli means low caste people where they are staying, and that is called क्या पल्ली? Sabarpalli. Bill जाति, this is Sabarpalli there. Then he came one place. Then he saw one young girl. Her parents are not in there. She was alone. Then Vidyapati asked to her, give me some glass of water. That young girl is very jolly and beautiful and attractive. She said, of course, take this. Then she also gave some water to Vidyapati. Vidyapati drank the water from his house. But something happened when that the young girl opened her door, sweet fragrance coming from her house. Then Vidyapati asked that the young girl, what is your name? She told, my name is Lalita Devi. And Vidyapati asked, why this sweet fragrance coming from your house? Then she was very simple girl, young and simple girl. She told, my father every day, very early in the morning, used to go and to worship Nilamadhava. When heard this word Nilamadhava, my father every day used to go worship Nilamadhava. Very early in the morning. And he used to go worship Nilamadhava, and night time he returned back. सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पिताजी कहाँ चली जाती है? नीलमाधव के सेवा के लिए जंगल में चले जाते हैं. रात्रि काल में वापस आते हैं. My father returned back. Then Vidyapati चौंक उठे. भाई इतने कष्ट करके मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, आज 2 महीने हो गया है, अभी तो कम से कम तो सुरा तो मिल गया. मिल गए ना? क्या मिला? सुरा तो मिल गया है. देखो now Vidyapati is very clever Brahmana. Vidyapati is thinking, anyhow I will find out why the Nilamadhava. Vidyapati, he was very clever royal priest. Just sweet words, he captivated the heart of Lalita. Very sweet words he used. Then this. Then Lalita, she also completely intoxicated with Brahmana Vidyapati. And told, okay, I will marry with you. But you have to tell to me, where is the Nilamadhava? कार्य सिद्धि करने के लिए कोई भी कुछ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? नीति शास्त्र में कहा गया, अपने कार्य सिद्धि करने के लिए शत्रु के साथ भी मित्रता करने में दोष नहीं होता है. If you perform your activities or goal, even you make the friendship with the enemies, that is no problem. नीति शास्त्र में एक कहावत है, कहानी यहाँ पर है. एक सांप है, किसी तरह से जो है वो इसमें बंद हो गया. क्या बोले? पिटारी में बंद हो गया. पिटारी समझते हो ना? टोकरी में बंद हो गया, केज में बंद हो गया. और उसी में क्या किया, चूहे, एक भी चूहा भी उसमें किसी तरह से आ गया.
तो चूहा देखा, सब तो मुझे खा लेंगे, चूहा तो छोटा चूहा था। सांप क्या करने लगे, अपने कार्य सिद्धि करने के लिए अर्थात पिटारी से निकालने के लिए चूहे के बोले, चूहे तुम्हारे साथ मित्रता मैं करता हूं, यद्यपि तुम मेरा खाद्य हो, इफ आर माई फूड, बट आई नाउ आई एम मेकिंग फ्रेंडशिप विथ यू। एक काम करो, तुम भी इस पिटारी में बंद हो, मैं भी बंद हूं। इसे बंधन से मुक्ति तो एक ही उपाय है, तुम यहां से एक छेद कर दो और तुम भी निकाल जाओगे, मैं भी निकाल जाऊंगा। देखो सांप ने क्या कहा, चूहे के बोले तुमको मैं नहीं खाऊंगा नहीं। कार्य सिद्धि के लिए उनके साथ, चूहे के साथ क्या कर दिया, मित्रता कर दी। तो उस समय क्या की, चूहे ने क्या की, वो छेद कर दिया और सांप बाहर आ गए। सांप जो बाहर आ गए, चूहे भी बाहर आ गए। सांप बोले, मित्र देखो तुम तो मुझे बहुत उपकार किया, बंधन से मुक्त कर दिया, एक बार तुमको मैं आलिंगन कर लेता हूं। चूहे बोले, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम मेरे मित्र है? आज समझ रहे, एक बार चुम लेता हूं। बस चूहे निकट में आ गया, सांप उसको बोले बुम, उसको क्या किया, मुंह में, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया, ये अपने कार्य सिद्धि करने के लिए कहीं कि शत्रु के साथ यदि मित्रता कर लिया जाए उसमें दोष नहीं लगता है, ये नीति शास्त्र के कहा है। इंग्लिश में कहते हैं enemy of my enemy is my friend. क्या? Enemy of my enemy is my friend. हाँ, enemy of my enemy is my friend. हाँ, ये किस लिए बोला था? इंद्रदुम्न महाराज, विद्यापति वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी निज जाति कन्या को विवाह नहीं करेंगे, वो उसके धर्म नष्ट हो जाता है। शास्त्र में लिखा गया, यदि ब्राह्मण यदि निज जाति लड़की के साथ विवाह करे, उसके क्या हो जाता है, उसके वो ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये शास्त्र के विचार है। पर विद्यापति ने क्या की, अपने कार्य सिद्धि करने के लिए, कार्य सिद्धि क्या है, नील माधव की दर्शन और पता लगाना, इसके लिए भी किसी के साथ विवाह करना, कुछ भी करने के लिए तैयार है भाई, भले मैं भ्रष्ट हो जाऊं किंतु भगवान के तो दर्शन तो हो जाएगा। अरे भगवान के दर्शन हो जाएगा तो उसका भ्रष्ट कहाँ रहेगा फिर? कोई एक बार भगवान के दर्शन कर ले। अच्छा, कोई नीच जाति के व्यक्ति भगवान के नाम करने से वो क्या हो जाता है, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाते हैं। वो तो सपोचते गरियान जाति वर्तिते नाम तुभ्यम। श्रीमद् भागवत में कहा गया, कोई एक व्यक्ति सपच कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति भी एक बार भगवान के नाम ले लेते हैं, वो सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, वो समस्त पृथ्वी पवित्र करने वाले जो एक बार भगवान के नाम लेते हैं। वो निज जाति हो ऊंचे जाति हो, एक बार को भगवान के नाम लेते हैं, वो समस्त पृथ्वी के भी पवित्र करने वाले। देखो कितना नाम की महिमा है। तो इसलिए विद्यापति ने क्या कि किसी प्रकार से नील माधव की पता तो लग जाए, सुराग तो मुझे मिल जाए। क्या नाम था? विश्वावसु है। और पिताजी के बोले, पिताजी ये मेरा पति है, विद्यापति मेरा। और विद्यापति भी देखा है, उनके ससुर जो है विश्वावसु जो है, जब आए उनके कर लूंगा। योर फादर विल नॉट सो टू मी नील माधव, देन आई विल कमिट सुसाइड। देर ललिता विचार करने लगी, तो मेरा पति मर जाए तो मैं विधवा हो जाऊं। इसलिए पिताजी के पास कहने लगे, पिताजी मेरे पति को किसी प्रकार से जो है नील माधव का दर्शन कराओ। यानी हाउ यू गिव दर्शन टू
नील माधव वही हाथ जाएंगे। बट विश्वावसु ने मैंने कसम करके रखी है, क्या कसम करके रखी है? किसी को दर्शन नहीं करेंगे, ले नहीं जाएंगे किसी को, किंतु उनके बेटी पट्टी बांध देंगे। और जब जहां पर मेरा ठाकुर जी जंगल में है वहीं पर पट्टी, काले पट्टी खोल देंगे, तुम नील माधव के दर्शन कर लेना। तुम्हारे तो यही है नील माधव के दर्शन करना। नील माधव दर्शन कर लोगे, फिर मैं पूजा आदि पाठ पूजा आदि करके फिर तुम्हारे आंख में काले पट्टी बांध देंगे और फिर ले आई जाएगी। विद्यापति विचार करने के बाद ठीक है, किसी प्रकार से तो दर्शन तो हो जाएगा, किंतु विद्यापति तो राज पंडित था, है, बहुत चालाक था, बैल के गाड़ी पर बैठ गए। विद्यापति और उनके ससुर क्या नाम है, विश्वावसु, दोनों बैल के गाड़ी पर बैठ गए। विद्यापति ने क्या कि है थोड़ा सा सरसों जो है अपने जेब में रख लिया है, और आंख में तो पट्टी बांधा हुआ, पता नहीं है कहां तरफ जा रहे हैं, और एक एक सरसों के दाने जो है फेंकने लगे। किंतु जानते हैं इसके कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद ये सरसों के पौधा हो जाएगा, बड़े बड़े पौधा हो जाएगा। फिर मैं इसी निशाना से मैं नीलमाधव तक पहुंचा। इसलिए उन्होंने छुप करके, विद्यापति ने छुप करके सरसों के एक एक दाना को जो है जेब से निकाला और ऐसे ड्रब करने फेंकने चले। ऐसे करते करते 1-2 घंटे में गंभीर जंगल में चले। जब गए विद्यापति, वास्तव जब मंदिर में जब पहुंच गए, नीलमाधव जब गए, नीलमाधव गए कोई है, देखा आपने? समुद्र के क्या बोले, नदी के किनारे में बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर ही है, देखने भी सुंदर जो है, सुरम्य प्रदेश है, कितना सुंदर प्रदेश है। हाँ, यहाँ से जाने में 5-6 घंटा लगते हैं। एक बार मैं 2 बस लेकर के गए थे, सारे अंग्रेज लोग थे, हमारे पद्मनाभ महाराज जी, बड़े बड़े सब महाराज थे। मुझे पूछा ये महाराज मुझे कितने समय, कितने, मैंने कहा 2 घंटा। वो चलते जा रहे गाड़ी चलते जा रहे, 6 घंटा हो गया पहुंचे। जाने में 5 घंटा और आने में 5 घंटा, 10 घंटा तो लगेगा। फिर 2 घंटा विश्राम, खाना पीना, फिर दम निकाल देंगे आप। एक बार जाए तो दूसरे बार नहीं जाएंगे। उस समय रास्ता भी ऐसे भी था, बहुत कठिन था, है। सब तो हमें ऊपर बिगड़ गए। आपने कहा ये 2 घंटे की रास्ता है, लगा दिया 10 घंटा। मैं कहा अभी कम से कम तो नीलमाधव तो दर्शन तो हो गया है, और जनों में थोड़ी आओगी कोई, एक बार कोई आ गया देगा है। विद्यापति बस प्रेम में मत होती, कितना सुंदर शंख चक्र गदा पद्मधारी नीलमाधव है, इतने सुंदर नारायण के स्वरूप जो है, बहुत सुंदर। और दर्शन करने के पश्चात है वो इधर उधर घूमने लगे, और उनके ससुर जो है वो तो ठाकुर जी पूजा करने में बैठ गए, मंत्र ध्यान जप आदि जो पूजा आदि करते 2 घंटे में लगे। और विद्यापति घूमते घूमते देखा एक सरोवर था, क्या था, आत्मा जो है चतुर्भुज धारण कर लिया। क्या हो गया? चतुर्भुज, शंकर चक्र। अब देखते देखते गरुड़ जी आ गए, और वो गरुड़ जी के पीठ पर बैठ करके कहाँ चले गए? वैकुंठ में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विद्यापति विचार करने लगे, भाई देखो कोई साधन भजन नहीं, कुछ नहीं। कोई कौन सा साधन भजन किया? दिन रात तक खा 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 है, दूसरे के उपकार नहीं करते, उपकार करते। कोई दूसरे के उपकार नहीं करते, उपकार करते हैं। देखो केवल जल को स्पर्श कर, उस सरोवर के जल को स्पर्श करने के साथ ही साथ चतुर्भुज धारण कर लिया और वैकुंठ में चले गए। विद्यापति विचार करने लगे, इससे और सरल उपाय क्या भगवत प्राप्ति के लिए, वैकुंठ प्राप्ति करने के लिए। इसलिए विद्यापति ने किया कि उस सरोवर में कूदने के लिए प्रयास किया। पेड़ पे चढ़े, किसी भी प्रकार से उस सरोवर में कूदने के लिए प्रयास किया, छलांग लगाने के लिए प्रयास किया। इतने समय आकाशवाणी हुई, हे विद्यापति सुनो, रुको,
हैं? देखो तुम्हारे लिए राजा प्रताप क्या बोले इंद्रदुम्न महाराज बैठे उत्कंठित होकर के बैठे हैं, किसी प्रकार से जीवन धारण करें। जाओ तुम्हें नीलमाधव के समाचार दो, है? तुम आत्महत्या करने के लिए प्रयास मत करो, है? जाओ तुम जल्दी जल्दी जाकर के राजा इंद्रदुम्न महाराज के नीलमाधव के बारे में समाचार दो। बस इतने कहने पर विद्यापति विचार करने वाले, हाँ मैं तो राज पुरोहित हूं, मेरा कर्तव्य है राजा को समाचार देना, जिस काम के लिए राजा मुझे भेजा था, है? इसलिए मुझे करना। इसलिए विद्यापति आत्महत्या नहीं किया। अंत में पूजा जब समाप्त 2 घंटे के बाद विश्वा बसु जब पूजा कर लिया, है? फिर विद्यापति के आंखों पर क्या दे दिया? काले पट्टी कस करके बांध दिया, उनके बैल की गाड़ी पर बैठा दी, है? साथ साथ दामाद चलने लगे आगे। किंतु विद्यापति के पता नहीं है कहां से जंगल, कहां से जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। आगे विद्यापति मन मन विचार करने लगे, यहाँ से किसी तरफ मुझे जाना चाहिए, है? और जाकर के राजा के जो है समाचार देना चाहिए, है? इसलिए 2-3 बार विद्यापति वहां से भगने के लिए प्रयास किया, किंतु उनके ससुर जो है बहुत चालाक है, ये तो देख लिया नहीं किसी प्रकार भी चले जाए और वो राजा के समाचार दे दे, राजा आकर के मुझे भी बांध ले, बंदी बना ले और ना जाने क्या करेंगे। इसलिए विश्वा बसु उनको जाने नहीं दिया, है? एक दिन किसी बहाना से जो है शौचक्रिया आदि करने के बहाना से जो है बाहर निकल करके आ गए और विद्यापति दौड़ते दौड़ते चले गए, जाकर के इंद्रदुम्न महाराज के समाचार दिया, ये महाराज है सुराग तो मिल गया है? कहाँ है? बोले किंतु मुझे तो पता नहीं रास्ता क्या है, मुझे पता नहीं है, किंतु मैं कुछ निशाना देकर का था। निशाना क्या है? सरसों के जो है बीच में एक एक करके दाना छोड़ दिया, जरूर अभी 1-1.5 महीने हो गया, सरसों के पौधा तो बड़ा बड़ा हो गया, उसी के निशाना लेकर हम चलते हैं। राजा इंद्रदुम्न महाराज बहुत प्रसन्न हुए, अपने सैन्य बल लेकर के, है? हाथी घोड़े, है? सेनाओं के लेकर के क्या करें, है? चल पड़े नीलमाधव दर्शन करने के लिए, है? और देखा क्या वास्तव रूप में 1-1.5 महीने के बाद 1.5 महीने जब हो गया, वो सरसों के पौधा तो इतने बड़े बड़े हो गया, है? उसके निशाना करते 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 जब इस समुद्र के किनारे में आ गए, है? कि देखो समुद्र के किनारे में बालू होता है, देखा ना अभी बालू, है? ये गर्मी के समय और हवा जब चलती है ना, बालू को भी इधर से हो जाता है उधर से हो जाता है, बालू उड़ते हैं ना, है? पता नहीं चलता है। और देखा क्या कुछ दूर चलने के बाद सरसों के पौधा दिखाई नहीं पड़ा, प्रवेशन के लिए बैठ गए। प्रवेशन में खाना पीना सब कुछ छोड़ करके, जैसे परीक्षित महाराज है 7 दिन तक कैसे बैठे? प्रायोपवेशन, है? कोई खाना पीना, जब पानी तक भी पीना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बैठे कर जाओ यहाँ पर आसन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। यदि नीलमाधव के दर्शन नहीं हुआ, भगवान मेरे पर प्रसन्न नहीं हुई, नीलमाधव तुम्हें दर्शन, ओरिजिनल नीलमाधव तुम्हें दर्शन नहीं होगा। ये बहुत समय बीत गया ना, है? वो बालू के अंदर में ना जानी कहाँ चले गए क्या पता है। इसलिए आकाश बनी हुई एरियल साउंड के कहने लगे नीलमाधव इंद्रदुम्न महाराज धीरज धारण करो। देखो ये समुद्र से 4 जो है लॉग आएगा, माने बड़े बड़े लकड़ी पेड़ के जो है दारू ब्रह्म, क्या बोलते हैं इसको? दारू ब्रह्म, तना, हाँ तना आएगा, हाँ लकड़ी बड़े बड़े तार, उसमें सब में क्या चिन्ह रहेगा? शंख चक्र गदा पद्म, ये चक्र रहेगा। उसी लकड़ी के द्वारा आप नीलमाधव विग्रह तैयार करो। जो आपके राज पुरोहित ने दर्शन किया,
है, उनके सहायता से आप नील माधव के तैयार करो। तब राजा विचार करने लगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे भी हो। भाई देखते देखते देखा क्या, ये समुद्र के बड़े बड़े लहरियां चलने लगे ना, देखा को हिलते डुलते हैं, चार जो है सुंदर जो है वो लग जो है आने लगे, लकड़ी जो बड़े बड़े तन आने लगे, और सब में क्या चिन्ह था? शंख चक्र गदा। राजा जी की बहुत प्रसन्नता हुई है। किंतु देखो समुद्र के तट पर तो आ गया, और समुद्र के तट से ऊपर कैसे उठा करके ले आएंगे, इतने भारी था। देखो स्वयं राजा अपने सारे हाथियों के घोड़े को लगा दी, बड़े बड़े रस्सी से बांध करके घोड़े को भी लगा दिया, वो चार लकड़ी को ऊपर उठाने के लिए है। किंतु नाजरी भगवान की कैसी इच्छा ही है, उठा नहीं पाए, खींच नहीं पा रहे थे है? बड़े बड़े हाथियां और घोड़े आदि खींचने लगे, आ नहीं पा रहे। फिर राजा विचार करने लगे क्या करें है? अभी उसके द्वारा कैसे नीलमाधव के ठाकुर जी का भगवत स्वरूप है। यहाँ पर मच्छर क्यों लग रहा है अभी? अच्छा, ये दारू ब्रह्मा है, इसको उठाने के लिए तब उस समय एक तरफ विद्यापति लकड़ी को हाथ लगाया, और दूसरी तरफ विश्वावसु। याद रखना, विश्वावसु कौन है? पिता, ललिता के जो है पिताजी, सवर जाति के थे ना, है, अरे ब्राह्मण है। भाई देखो दोनों हाथ, दोनों तरफ हाथ लगाने के साथ ही साथ चार जो है लकड़ियां जो है अपने आप हर 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 करके ऊपर आ गया, देखो है। और राजा उसको लेकर के इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया, और देखो मंदिर तो बनाया, इस मंदिर को प्रतिष्ठा होना चाहिए। इस मंदिर का प्रतिष्ठा कौन करेगी? ब्राह्मण होना चाहिए ना, अच्छी ब्राह्मण होना चाहिए, जबरदस्त ब्राह्मण, जिसको द्वारा एरे तेरे के द्वारा मंदिर प्रतिष्ठा नहीं होता है, हाँ? मंदिर विग्रह प्रतिष्ठा आदि जो है अच्छे तत्वज्ञ रसज्ञ और जिसके हृदय में अनुभव है, ऐसे संत महात्मा गुरु के द्वारा क्या करना चाहिए? विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा होना चाहिए, है? मंदिर प्रतिष्ठा विग्रह प्रतिष्ठा ये साधारण काम नहीं है, जिसको ताराई बस हो गया, लड्डू खिला दे, लड्डू गोपाल नहीं हो जाएगा। विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा किसके द्वारा होना चाहिए? भजनशील उत्तम भागवत के द्वारा होना चाहिए, ब्रह्मा जी के द्वारा, है? इसलिए इंद्रदुम्न महाराज ने क्या की, चले गए कहाँ? सत्यलोक में चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, प्रभु आप इस मंदिर की प्रतिष्ठा करिए। ब्रह्मा जी ने बोले, देखो ये मंदिर को मैं क्या प्रतिष्ठा करूं, ये तो मंदिर तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है, और स्वयं है, स्वयं ही निकल करके आए। ऊपर से देखते हैं हम बनाया, ये कहते हैं हम बनाया, ये तो अपने अहंकार मात्र है। विग्रह मंदिर आदि कहा जाता है, ये चिन्मय है? ये चिन्मय स्वयं ही प्रकट होता है, ऊपर से दिखाता है ये व्यक्ति बनाया, फलाना व्यक्ति बनाया, ये किया, ये तो केवल तार्किक लोगों के समझाने के लिए कहा जाता है, किंतु वास्तव विग्रह प्रतिष्ठा ये साक्षात स्वरूप ही है। ब्रह्मा जी ने क्या की, बोले मैं आता हूं, आप जाओ मैं जाओ। भाई देखो इंद्रदुम्न महाराज इस जगत से माने भूलोक से जब ब्रह्म सत्यलोक तक पहुंचे, आने जाने कितने साल हो गया, हजारों साल फिर गया, अब ये सोच नहीं सकते। बोले देखो उतने समय ना जाने पृथ्वी के कितने उलट पलट हो गया, कितने प्रलय हो गया है। यहाँ तक भी कहावत है, बोले ये मंदिर इतने मिट्टी के नीचे इतने चले गया, बालू में इतने ढक गया, जो विशाल मंदिर देख रहे। कोई एक मुसलमान राजा, मुसलमान सैन्य जो है अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, इतने समय मंदिर के जो ऊपर के जो चक्र होता है ना, उस चक्र के एक जो लोहे के सिक जो है ना, वो आधे इंची जो है ऊपर था मिट्टी से ऊपर, और घोड़े के एक खुर लगने के साथ ही साथ वो घोड़ा क्या हो गया, गिर गया, पलट गए। मुसलमान सैन्य के बहुत क्रोध आ गया, बोले इतने यहाँ पर किसने ये लोहे के
सरिया यहाँ पर गाड़ करके रखे हैं। बोले वो खोदने लगे, राजा के द्वारा आदेश लेकर उसको खोदने लगे। बोले खोदते खोदते विशाल मंदिर निकाला है। ये जो देख रहे देखो लगे, ये मंदिर किसका है, किसका होना चाहिए। मुसलमान सैनिक कहने लगे इसको तो मैंने मिट्टी खोद करके निकाला है, बालू ढक गया था ना, इसको मैंने निकाला है, ये मंदिर मेरा है। और वो राजा कहने लगे नहीं, मंदिर तो मैंने बना करके गए थे, वो ब्रह्मा जी के बुलाने के लिए गए, इसके प्रतिष्ठा करने दोनों में। अभी कौन इसको ये देंगे, निर्णय कौन देंगे है? देखो काकभूषणी जो रामचंद्र की लीला में है, काकभूषणी की कथा जो आती है समझे, बहुत प्राचीन कथा। काकभूषण बोले चलो दोनों चलो, ये निकट में एक बरगद पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठे हुए थे। कौए बोलने लगे मैं देता हूं निर्णय। ये देखो ये मंदिर इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया है। फिर उन्हें को हजारों साल बीत गए, उनसे सतयुग चला गया, फिर दूसरी सतयुग आ गया है। आप ये सोच नहीं सकते हो इस जगत से सत्य लोग आने जाने में कितना फर्क होता है। इसके भी एक कैलकुलेशन स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल टेस्ट स्टेटमेंट है। इस जगत की एक दिन रात्रि कितने होता है, देवलोक में कितना लोग होता है, एक स्टेटमेंट है। हमारे यहाँ पर जो है 365 दिन में एक साल होता है, देवलोक में यहाँ पर 100 साल होने पर वहाँ पर देवलोक में होता है एक दिन होता है। और उससे भी ऐसे ऐसे करते करते सत्य त्रेता दापो सत्य भूलोक भूवलोक महालोक जनोलोक तपोलोक और सत्यलोक है। आज समझ में तो इतने हो जाता है, अनेकों दिन हो जाता है, अनेकों घंटा होता है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। इसलिए काकभूषणी कहने लगे ये इंद्रदुम्न महाराज ने ये मंदिर बनाया। अभी तक भी हम जाते हैं ना, देखा है ना, काकभूषणी के स्थल जो है ठीक जगन्नाथ मंदिर के इस तरफ हम जाते हैं, परिक्रमा जो करते हैं, जहाँ पर हम पहले प्रणाम करते हैं, हाथ लगाते हैं ना, साउथ गेट वाला, हाँ वहाँ पर है, साउथ गेट पे जो है, साउथ गेट पर याद रखना, क्या कि नहीं लगाए कि नहीं, बोले वहाँ पर जाकर के पहले काकभूषणी के पास जाकर के उससे अनुमति लेना पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा, जगन्नाथ जी के दर्शन आदि करने के लिए ये विधि है। ऐसे नहीं है दौड़ करके मंदिर में दौड़ चले जाओ, सब महाभागवत चैतन्य महाप्रभु जैसे, ऐसे नहीं। मंदिर परिक्रमा करने के लिए, विग्रह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इसके एक नियम होता है, विधि है। क्या विधि है? पहले देखो मैं बताता हूँ। पहले सिंह दरवाजा से प्रवेश करो, प्रवेश करके वहीं पर काशी विश्वनाथ है, क्योंकि हर रोज शिव जी काशी से आते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करके फिर विश्वनाथ जी चले जाते हैं। एक ब्राह्मण था, काशी जी शिव जी के सेवा करने, विश्वनाथ की सेवा करने वाले थे हैं। और वो ब्राह्मण शिव जी के बोले हैं, ये देखो, कहाँ के रहने वाले थे वो? जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण था, वो शिव जी के जो है सेवा करता था है। शिव जी प्रसन्न करे, बोले वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे बताओ मैं काशी जाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं काशी में जाने से मुक्ति हो जाता है। शिव जी कहने, अरे मूर्ख है, ये मुक्ति देने वाला तो स्वयं जगन्नाथ है, मैं मुक्ति देने वाला नहीं हूँ। जितने देव देवी है ना, हम लोग के हाथ में मुक्ति नहीं है। मुक्ति किसके हाथ में? मुकुंद ददाती जैसे थी मुकुंद। अरे देखो जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है, उसके नाम ही मुकुंद है भगवान के है। हम भी हर रोज इस काशी से आता हूँ ये जगन्नाथपुरी में है, और ठाकुर जी के दर्शन करके जाता हूँ है। लोग जहां पर रहते हैं ना, उसके महिमा वो स्वयं नहीं जानते। जो जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं उसके महिमा नहीं जानते। वो कहाँ जाना चाहते हैं? काशी जाना चाहते हैं फांसी लगाने के लिए है। हाँ, ठाकुर जी इसलिए नियम है, नित्य प्रत्यह है। विश्वेश्वर, काशी के विश्वेश्वर जो है शिव जी जो है यहाँ पर आते हैं, और इसलिए और जगन्नाथ जी के स्तव सिद्ध करके प्रणाम करके जगन्नाथ जी के दर्शन करके पुनः अपने काशी में चले जाते हैं।
वहीं पर राम नाम आदि दे करके सब जीवों के उद्धार करते हैं। ये सब शास्त्र में वर्णन है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा था भाई देखो, किसी के यदि मंदिर आप प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करो? पहले इसको सिंह दरवाजे में प्रवेश करो, सिंह दरवाजे में प्रवेश करिए, पतित पावन जगन्नाथ जी के प्रणाम करो, पतित पावन जगन्नाथ जी के प्रणाम करके फिर बाएं हाथ पर विशेष काशी विश्वेश्वरनाथ उनके भी प्रणाम करो, क्योंकि शिव जी के कृपा बिना हम आगे प्रवेश नहीं कर सकते। वैष्णवानां यथा शंभु, शिव जी बैठे हुए हैं। शिव जी के प्रणाम करके फिर धीरे मेन गेट में इधर आ जाओ, आकर के बाएं तरफ होकर के परिक्रमा करना है, दक्षिण गेट के तरफ चले, दक्षिण गेट के जा करके फिर वहीं पर ये बरगद का पेड़ देखोगे, उस बरगद का पेड़ वहीं पर जो है काकभूषणी विराजमान होते हैं, वहीं पर काकभूषणी से उससे भी प्रार्थना करो, उनसे प्रणाम करके फिर आगे 2 कदम बढ़ो, जहाँ पर वो ब्राह्मण लोग मुक्ति धाम ब्राह्मण लोग बैठते हैं, वहीं से प्रणाम करो, प्रणाम करके आगे फिर परिक्रमा धीरे धीरे लगा करके फिर उस गेट से आ जाओ, अंदर आ जाओ। और कैसे जगन्नाथ जी के दर्शन करना है, महाप्रभु ने क्या विधि दिखाया, जहाँ पर महाप्रभु बिल्कुल दूर में रह करके दर्शन करते थे। बोले ठाकुर जी के सामने दर्शन होते ना, लकड़ी बुद्धि हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी के दर्शन कैसे करना चाहिए? दूर से दर्शन करो, भगवत बुद्धि रहता है। न निकट में जाओगे तो आपको ये ठाकुर जी है कि लकड़ी है कि पत्थर, उसे अपराध हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया अपराध किसे? गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि करना, वैष्णव में जाति बुद्धि, अर्चो शिला विष्णु, अर्चा विग्रह में अर्चा विग्रह के शिला बुद्धि पत्थर बुद्धि करना, गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि करना, ब्राह्मण के वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि करना, ये क्या है? अपराध। ये अपराध हो जाता है, उसे भ्रष्ट हो जाता है, भक्ति से नष्ट हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के कैसे दर्शन करना चाहिए? दूर से दर्शन करो, है भाई, दूर से दर्शन होता है ना, वो अच्छा रहता है, श्रद्धा रहता है, प्रीति रहता है। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव के इसलिए चैतन्य लोग कहाँ से दर्शन करते थे? गरुड़ स्तंभ से वहीं पर दर्शन करते भाई, गरुड़ स्तंभ वहीं पर, आप गरुड़ स्तंभ उधर चलेगा ना, देखो ना, महाप्रभु जब दर्शन करते भाव में दृष्ट होते के वो जाते थे ना, उनके अंगुली जो लगा है पत्थर के ऊपर ना, वो पत्थर भी पिघल गया। और महाप्रभु के जहाँ पर चरण था ना, चरण के जो नीचे जो पत्थर है ना, वो भी पिघल गए। इसलिए देखो जगन्नाथ जी के जब दर्शन के ऊपर उपरांत क्या करो, इधर पर महाप्रभु के चरण दर्शन करो। कहने काल देखा कि नहीं देखा? क्या देखा तुमने? हाँ अरे जहाँ पर 10 रुपया चढ़ा बाहर, हाँ वो बाबा जी जो चढ़ा में दिया, वो महाप्रभु के चरण चिन्ह है। वो साक्षात जो है महाप्रभु जब खड़े होकर के गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के दर्शन करते थे, देखो वो पत्थर भी देखो, जगन्नाथपुर में गरुड़ स्तंभ है, और बाहर के गेट में जो है क्या स्तंभ है? अरुण स्तंभ कहा गया। साक्षात सूर्य देव वहीं पर विराजमान होते हैं। सारे देवता लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, इसलिए अरुण स्तंभ कहा गया। समझ में आने? अरुण स्तंभ कहाँ है? जहाँ पर हम एंट्री में के जो जहाँ बाहर होते हैं ना, वो अरुण स्तंभ कहा है, और गरुड़ स्तंभ अंदर में है क्या? इसलिए महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पर रह करके खड़े होकर दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। भाई जगन्नाथ जी के अंदर जाना भी नहीं चाहिए, लोग तो जाते हैं, क्यों? वहीं पर कहा जाता है सब शालग्राम शिला जो है बिछा हुआ है, जगन्नाथ जी जहाँ पर विराजमान होते हैं, कई शालग्राम से में पैर न लग जाए इसलिए है। और है 2-1 बार तो हम गुरुदेव के साथ गए थे अंदर दर्शन करने के लिए, किंतु वो दर्शन कैसे करो? बहुत सावधानी से करो, सावधानता हटी दुर्घटना। हाँ देखो, मैंने जो कथा कहा था, क्या बोला था, छोड़ दिया आगे पीछे। ओ काकभूषण ने जब दे दिया जी, ये औजार जो है वो लगाने लगे, सब अपने आप फट फट करके अपने आप टूटने लगे। अरे करात लगा काटने के लिए, करात लगाने के साथ यह करात जो है 2 खंड हो गया। करात जानते हो?
आरी जो है, आरी लगाने के साथ आरी अपने आप टूट गया, दो खंड हो गया है। चलिए होता है उसे ये करने के लिए, छेद करने के लिए ऐसे जीजर है, वो भी टूट गया, जो भी आ गया है। जितने कारपेंटर आ गया उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स टूट गए, कोई बना नहीं पा रहे हैं। नो ट्रांसलेट, हाँ ट्रांसलेट कम, समटाइम जो ट्रांसलेट वो होता है ना उसके सुनाई नहीं पड़ता है, सर काम नहीं होता है, ट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं करता है ना है। And so many carpenters they came, but when they touched the instruments on the wood, then that instruments completely what? Broke. And then King Indradumna Maharaj, he became very upset. What will do now? है कोई कर, इतने समय in the meantime संग भगवान जगन्नाथ देव व कृष्ण manifested in the form of one carpenter. देखो भगवान स्वयं जो है ये क्या बोलते हैं, बड़ाई के रूप में आगे है। उनके नाम बोला, तुम्हारे नाम क्या है? राणा, क्या नाम रखा था? राणा था उसके नाम, मैं नाम भूल गया, उसमें लिखा है ना राणा है। वो बोले, वो ब्राह्मण जो था वो जो बड़ाई था बहुत दुबले पतले थे हैं। That Brahman, he was very lean and thin. He told, okay, I will build this Thakurji and condition. And one condition. What is the condition? The 4 logs he put in this temple. But 21 days the door should be closed. After 20 days, then you can open the door, then you can take darshan to Nilmadhava. Then king agreed, king told okay. Then 4 logs inside in the temple. And door completely what? Closed. And close kar diya. 14 days passed. But there are no sound coming, nothing. And king and queen, there no sound coming. Then queen, and what is the name of the queen? Gundicha Devi. And she told, Maharani hot, Sri hot. She is very stubborn, her was. So maybe he left body inside. Understand? What will do now? And maybe we'll go hell. And because 14 days passed, no sound coming. अरे कोई काम करता है अंदर में तो ठक 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 कुछ शब्द तो होगा, कुछ नहीं आ रहे. No sound coming from the temple. And maybe he died. And 20 days he did not eat anything. He did not drink. He did not drink. कभी कभी स्त्री क्या करते हैं, पोती के मानो एक बाल को उखाड़ कर फेंक देते हैं. है कि होता है कभी कभी ना? अरे मानना नहीं चाहती है, हजारों कुछ बोले मानना नहीं चाहते. नहीं, स्त्री हॉट हो जाता नहीं है. एक होता है बाल हॉट होता है, छोटे बच्चा के हॉट होता है बेबी स्टबन. एक होता है स्त्रियों के हॉट होता है. एक तो वो अंदर में राणा भी मर गया भाई. 15 दिन हो गए ना, 12-14 दिन हो गया. 12 days or 14 days passed, or maybe he left body. Then and my wife also she is saying she will also commit suicide. Then I lose 2 things. पत्नी को भी हराऊंगा, पत्नी भी हार जाएगा और राणा भी, वो ब्राह्मणत्ता भी, वो भी हो जाएगा. अंत में राजा ने क्या की आदेश दिया. देन राजा किंग also gave order. Then they open the door. Then when ठाकुर जी जैसे आप जगन्नाथ देख रहे हो ना, हाथ नहीं है पैर नहीं है. एक्चुअल जगन्नाथ जी का हाथ पैर नहीं है. ये जो आप लगा दिया ना लकड़ी दोनों तरफ ये लगा दिया, तकिए की भांति लगा दिया ना. जगन्नाथ जी को आप देखते हैं ना, इधर एक है इधर एक है, वो हाथ है थोड़ी
वो जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, वो हाथ के भांति है, दोनों तरफ दो लकड़ी जैसे लगा दी, तकिया जैसे लगा देते ना, ऐसे लगा दी है, इसी प्रकार से डायलेटेड दिस ठाकुर जी विग्रह है। ये इंद्रदुम्न महाराज established this ठाकुर जी संकट जगन्नाथ this and also told every year you have to arrange ठाकुर जी जगन्नाथ रथ यात्रा है। दिस दारू ब्रह्म जगन्नाथ, what does it mean जगन्नाथ? Jagannath is called Jagatnath. Jagat means universe. Nath means husband. Who is the universe? Who is the Lord of universe. that is called Jagatnath. And Lord Jagannath is called Patit Pavan. Patit Pavan means he is called the savior of the fallen of the all the living entities. एक बार कोई जगन्नाथ के एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसके पुनः मातृगर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता है। One who takes darshan to Lord Jagannath, again he will not come back in this material world. माने उनके मातृगर्भ में जन्म लेना नहीं पड़ेगा है। लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन के इतने फल बता रहे हैं। मनुष्य मात्र के क्या होना चाहिए? एक बार नहीं, एक बार जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहिए। जीवन में एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन। यू आर लो कास्ट, यू आर हाई क्लास, हाई कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नो हार्म, बट यू हैव टू टेक दर्शन टू लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ के दर्शन करना चाहिए जीवन में है। लॉर्ड जगन्नाथ, इसलिए जगन्नाथ के कहा जाता है क्या? पतित पावन। बोलो पतित पावन जगन्नाथ की है। जगन्नाथ को दर्शन करना चाहिए है। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न महाराज है, वहां से एक वर मांग लिया, ये प्रभु है माय डायनेस्टी कंप्लीट यूर डिस्ट्रॉयड रूइंड है, ये पर ध्वंस हो गया, आगे कहीं नहीं रहे। क्यों? क्यों कहा, क्यों ये वर मांगा जो मेरा वंश यहीं पर ध्वंस हो जाए? क्योंकि ये होता है, ये मंदिर किसने बनाया? इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया। जैसे मैंने कहा था ना, काकभूषण ने कहा ये विग्रह किसने प्रकाश किया? इंद्रदुम्न महाराज। तो परंपरा में आएंगे ना, उसके बेटा कहेंगे ये मेरा पिताजी के मंदिर है और संपत्ति आ गया, उनके बेटा लोग भी केस ठोक दिया मुंबई में, ये मेरा पिताजी की सारी संपत्ति है, हमें मिल जाए। क्या कि नहीं किया? देखो इसमें हमारे गुरुदेव के एक विशेष अवदान है। कोर्ट डिसीजन देते जा रहे हैं ये देखो, ब्राह्मण है और सन्यासी है, सन्यासी के कोई अधिकार नहीं रहती। कोई सन्यास ले लेते हैं, भारतीय नहीं हाँ भारतीय सुनते, और कोई प्रमाण हो जाए ये सन्यासी है। देखो उनके बेटा ने क्या किया, इसको आपको समझना चाहिए, इसको उनके समझना चाहिए। जो हमारे गुरुदेव की नारायण गोस्वामी महाराज के इस्कॉन संपत्ति के रक्षा के मूल कौन है? आज तो इस्कॉन हमारे गुरुदेव की वो क्या बोले, यहाँ तो नाम तक किताब में नाम तक नहीं रखते हैं, इसलिए तो बहुत क्रोध आता है। देखो गुरुदेव ने तुम्हारी संपत्ति के नहीं, इस्कॉन संपत्ति के इतने तुम्हारे किया, कम से कम किताब में तो लिखा रखना चाहिए जो उनकी सन्यास गुरु कौन है। अरे सन्यास गुरु के नाम तक नहीं रखा है, बीच में तो आप एक बार बिल्कुल उड़ा दिया है। हरामखोर कहा जाता है, निमक हराम कहा जाता है। एक बार अरे रखा नहीं था, आपने पूछा अभी अभी तो थोड़ा रखना शुरू कर, इसके बीच में तो बिल्कुल उड़ा दिया। यहाँ तो भी कहते हैं, पूछते हैं, हम ब्राजील में गए और वहीं पर कहे भाई बताओ तो स्वामी महाराज के सन्यास गुरु कौन है? तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के जाकर के पूछा है, बोले कोई एक मथुरा के कोई एक ब्राह्मण उनके सन्यास दे दिया। वही कहते हैं वो काशी में जाकर के सन्यास ले लिया, स्वामी महाराज काशी में जाकर के सन्यास ले लिया है। हरि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी से सन्यास लिया, और उस सन्यास के पीछे कौन रहा? भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज है। इनको इस सन की जो संपत्ति है ना, यदि गुरुदेव यदि नहीं जाते बम्बई में जाकर के विटनेस नहीं देते, सारे संपत्ति उसके पुत्र ले लेते, जज तो साइन करने वाला था है? उन्होंने कहा जब मेरे पिताजी सन्यास नहीं लिया है, उनके पुत्र आदि जो है कहने लगे मेरे पिताजी जो है सन्यास नहीं लिया
है समझ में। हमारे पिताजी सारे है संग्रह करके पाठ पूजा करके है ये सब एकत्रित किया। जैसे हम पाठ पूजा करते हैं ना, दक्षिणा मुझे मिलता है उससे हम मंदिर बनाए है। तो उससे अब उसी प्रकार हमारे पिताजी पाठ पूजा करके धीरे समस्त पाठ पूजा करके जो दक्षिणा मिला उस दक्षिणा के द्वारा ये मंदिर आदि बनाया। इस मंदिर के अधिकार उत्तराधिकार हम लोग हैं। उसके पुत्र ने ये केस ठोक दिया। देखो केस चले, जज साइन करने वाला था। हाँ, इनको जो है आधा संपत्ति उसके पुत्रों को देना चाहिए है। जज राय देने वाला था। देखो नारायण गोस्वामी महाराज के ले गए, ये तमाल कृष्ण महाराज और ये समस्त लेकर के गए थे, हमें याद है। और जज के सामने जाकर के श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज ने कहा, नहीं मैं इसको विटनेस हूं। गुरुदेव ने कहा है मैं इनको सैन्य संन्यास की जो डोर कोपिन और दंड दिलाया ये समस्या से किया। तब जज ने देखो उलट दिया है, उलट दिया। कहा उनके बेटाओं के जो है साईं महाराज के जो क्या बोलते हैं पुत्रों की जो है संपत्ति कम से कम आधा पुत्र मिलना तो चाहिए ना है। तो किनको जज ने किया कि बिल्कुल दे तुम्हारे पिताजी ने सन्यास ले लिया, ये कौड़ी भी तुमको नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मैं कहते इस्कन के संपत्ति के रक्षा की जो अवदान जो है ये श्री नारायण गोस्वामी महाराज नहीं होते तो ले लेते। गुरुदेव जी कहते नहीं वो स्वामी महाराज सन्यास नहीं लिया, मुझे पता ही नहीं। जज ने कहा इसने सन्यास लिया, विटनेस कौन है? शादी तुमने किया, पर शादी के तो विटनेस तो बताओ है। नहीं कहा दिया मेरा शादी हो गया इस लड़की के साथ, मैं थोड़ी मान लिया जाए है? हाँ कोर्ट तो उसके मानते हैं, विटनेस कौन है? तो उसे हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज ने, इसलिए इस्कन के सारे संपत्ति के रक्षा के मूल जो है हमारे गुरुदेव है। ये लोग इस्कन के उचित है, सारे संपत्ति के गुरुदेव को देना चाहिए था। हाँ हाँ स्वयं गुरुदेव भी स्वयं उनके समाधि। चलो समाधि तो कौन जो जज ने पूछा ये जो साईं महाराज जो सन्यास लिया इसके विटनेस क्या कौन है, उसके पास कौन था है? तो अब गुरुदेव ने श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने उन्होंने साक्षी दे साइन किया और उन्होंने जज के पास ये बताया। तब जज ने इनके सारे संपत्ति है। देखो कितना हमारे गुरुदेव उदार है। यदि गुरुदेव यदि कहते नहीं मुझे पता नहीं है यदि कहते थे नहीं ये सन्यास नहीं लिया, जज तो पूरा संपत्ति उनको बेटा को दे दिया है। ऐसा है तो मैंने किस लिए कहा था ये इंद्रदुम्न की शादी बच्चे उनको ऐसा बच्चे ना हो वंश नाश। हाँ इसलिए इंद्रदुम्न महाराज क्या मांगा था बर, ये मेरा वंश यहीं पर, मैं तो सन्यास नहीं लिया है मैं, और मेरे कोई वंश में कोई नहीं रहा है कि मेरे पुत्र कन्या आकर के कहेंगे ये मंदिर मेरा पिताजी का है, ये धन सम्पत्ति पिता है। मंदिर तो भगवान की होती है सब लोग की होती है। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत रहती है मेरा करके बहुत परेशानी रहती है। ये होता इसलिए इंद्रदुम्न महाराज और इंद्रदुम्न महाराज भगवान कर ये प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ आपको मैं कैसे सेवा करूं आप बताइए। तो भगवान ने ये कहा है संसार करके और मयूर पंखा लगा करके सजा दे दिया है। बिल्कुल आपको लगेगा नंदन नंदन कृष्ण है। इसलिए जब इंद्रदुम्न महाराज भी यही वर मांगा जे प्रभु आपको मैं कैसे सेवा करूं। तो ठाकुर जी ने साक्षात कहा जैसे से उत्सव, जैसे रामनवमी होगा ना, आप जगन्नाथपुरी में आ जाना रामनवमी के दिन, बिल्कुल जगन्नाथ जी का कैसे सजाया राम के बारे में इतने सुंदर वो पोशाक भी पहना देते हैं, तीर धनुष दे देते हैं। कोई कहता है जगन्नाथ जी के तो सिर पर पंखा लगाना नहीं चाहिए है, ये तो बात सत्य है। हर समय नहीं, जब जब फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, जिस उत्सव में होता है उस उत्सव पर जगन्नाथ जी के सिर पर मोर पंखा लगना चाहिए। हर समय नहीं कि जगन्नाथ जी तो द्वारकाधीश है ना, द्वारकाधीश लगा दे। किंतु ये वर मांग लिया था ये जब जब उत्सव होगा उस उत्सव में when the festival will come that you can decorate Thakur ji and act like that Thakur ji, and when Ram Navami will come that time pujari
and very nicely decorated Lord Jagannath as like Ram, and put in the, it's called, and bow and arrow and Ramchandra's Kshatriya base. When that what is called Janmashtami coming, and Krishna Mahotsav, Janmashtami, and then Pujari very nicely decorate Thakurji, as like Krishna peacock feather, Bangsi, everything is there. Understand this? So in this way, Jagannath and Jagannath, even also, and when there is a Ganesh Chauthi na kya bolte hain? गणेश चतुर्दशी Ganesh Chaturdashi, and that time they also Thakurji Jagannath also manifested as like Ganeshji. This thing. And also prepare many kinds of preparation, Mahaprasad, 56 bhog there. Jagannath, he also did. And but Jagannath, how long he will take rest? Only 3 hours. हम लोग तो 3 घंटा सोते, 3 घंटा जगते हैं और 19 घंटा हम सोते हैं, 21 घंटा सोते हैं। और जगन्नाथ 21 घंटा जगते हैं और केवल 3 घंटा सोते हैं। और 21 घंटा जो जगन्नाथ जगते हैं ना, और उनके हाथ के पानी कभी सूखते नहीं है। बोले क्यों? जगन्नाथ जी प्रसाद पाते हैं। हम तो चम्मच में खाते हैं ना, ये चम्मच में खाना जो है ये सब वेस्टर्न कल्चर है, हमारे वैदिक संस्कार नहीं है। हाथ में खाओ, भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिया किस लिए? चम्मच से खाने के लिए, काटा चम्मच चाइनीज जो खाते हैं ना, और अंग्रेज लोग चम्मच में खाता है, भारतीय नहीं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में इसलिए लिखा है ठाकुर जी कैसे खाते थे, तो इसलिए वहीं पर लिखा है ठाकुर जी कैसे प्रसाद पाते हैं, इसलिए लिखा है ये ठाकुर जी। और खाने के बाद क्या होना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। ऐसे नहीं टिश्यू पेपर लेकर के ऐसे लेकर के पूछो। हाँ, ये समझते क्या है? म्लेच्छ की काम है सब। म्लेच्छ समझते हो कि नहीं? अंतज का काम है, ये शुद्ध सदाचार नहीं है। क्या कपड़े से और इससे हाथ पोंछने से शुद्धता होता है क्या? बोले जल से हाथ धोने से पवित्र होता है। सैनिटाइजर यूज करते हैं कुछ लोग, क्या सैनिटाइजर लगा लेते हैं। हाँ, ये नहीं, ये सब काम नहीं है। ठाकुर जी के प्रसाद देखो, कम से कम लगे ना कितने सुगंध लगेगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद है, देखो कितने सुंदर लगे। कल हम जगन्नाथ जी के देखो दाल कितने मीठा था, कितने सुंदर मीठा है, कितने सुंदर प्रसाद है। हाथ अभी तक देखो जगन्नाथ जी के प्रसाद मिले। जगन्नाथ जी के ये विशेष वैशिष्ट है। और जगह में तो प्रसाद अब खाते रहते, और ठाकुर जी के प्रसाद लेते हो। गोविंद जी के प्रसाद लिया आपने, हम जब जयपुर जाते हैं, और क्या बोलते हैं मदन मोहन के प्रसाद लेते हैं, सब ठाकुर जी का प्रसाद लेते हो, बहुत सुंदर है। किंतु जगन्नाथ जी के प्रसाद के ये एक विशेष वैशिष्ट है, ये आप सबको मानना ही पड़ेगा। आप किसी के भक्त हो, राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, या तो राधा जी के भक्त हो, किसी के भक्त हो, सबके हम प्रणाम करते हैं। किंतु देखो जगन्नाथ जी के जब प्रसाद में उसमें एक अनूठा है, वो अवर्णनीय है, इनकम्पेरेबल है। जगन्नाथ जी के प्रसाद इसलिए कहते हैं प्रसाद कैसे खाना चाहिए? हाथ से खाओ, चम्मच से नहीं है। क्योंकि भरवे चम्मच से खाने के प्रसाद कैसे आ गया, मैं ये बताता हूं। देखो शीत प्रधान देश में, विदेश में, इंग्लैंड अमेरिका देश में ठंडी पड़ता है, इसलिए चम्मच से खाते हैं, और खाने से हाथ धोना पड़ता है। दाल अथवा कोई जो सब्जी लग जाएगा उसके हाथ में, इसलिए उनके ठंडी जल काम, ठंडी में हाथ लग जाएगा ना, इसलिए वो लोग चम्मच के खाते हैं। उनके आहार विहार भी दूसरी होता है। क्यों? वहीं पर क्लाइमेट भी दूसरी है। रशिया में जाते हैं ना हम, -20 में चले जाते हैं, साइबेरिया में ऐसे कपड़े पहन कर तो बिल्कुल ये हो जाता है। अंदर में ये पढ़ना पड़ता है ना, क्या पढ़ना पड़ता है? अरे वो क्या पहनते हैं वो लोग, इनर, उसको पहनना पड़ता है। सन्यासी के पहनना नहीं चाहिए, मैं तो पहनता ही नहीं हूँ, क्योंकि बार बार कभी कोई पहन लेता हूँ, मेरे तो ऐसे अटकट लगता है। भाई माइनस जहाँ पर 20 डिग्री होता है ना, बाहर आ जाओगे बिल्कुल जैसे लगता है बाहर ये बर्फ जैसे, इसको पहनना पड़ता है।
है नहीं लो, ये बिल्कुल जो है ये पैर है कि नहीं आपको पता नहीं चले। इसलिए कहा जाता है जैसे देश ऐसे बेश। भाई जैसे देश में जब ठंडी देश में जाना पड़ता है तो है गर्मी कपड़े पर, तो उस देश की खाना में उसमें हमें कोई दोष नहीं है। उस देश के लोग चम्मच से खाते हैं, उससे हमारे दोस्त, उसमें हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करते क्यों, उसमें खाना पड़ता है उसको। है समझ रहे? वेस्टर्न पीपल दे आर ईटिंग विद द स्पून। दिस इज नॉट देयर फॉल्ट because that's their culture, because that according to their weather climate, and they are not also washing their hand because if you are there हाथ आपके पता ही नहीं चलेगा। अरे मैं साइबरी में ट्रेन से उतर करके आ गया, पानी मुझे दिया तो यहीं पर 2 मिनट के पर मेरा पानी जो है नीचे नहीं आ रहा। अरे भाई मैं सचमुच मैं कर रहा हूँ। मैं ट्रेन से नीचे साइबेरिया गए थे ना, साइबेरिया में गए, नीचे से उतर करके आ गया और वो किसी ने भक्त ने मुझे बोतल के पानी हाथ में दे दिया। मैं वहीं पर रख दिया, मैं 2 मिनट बाद में पीऊंगा। बैठे थे, पानी ऐसे करने लगे तो हानि, मतलब क्या बात हुआ, देखा तो बिल्कुल जम गया। मेरे वो एक्सपीरियंस है। अच्छा पता उस देश में चम्मच से हाथ से खा पाओगे? हाथ तो बिल्कुल आपको जो है पता नहीं चलेगा, स्टिक हो जाए भाई। इसलिए उसके कोई दोष नहीं है। ये विदेशी लोग जो है चम्मच से खाते हैं और जो उनके उसमें उनके दोष नहीं है, क्यों वहीं पर वेदर, वहीं पर क्लाइमेट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए कहता है जैसे देश ऐसे देश पढ़ना पड़ता है, उसे दोष नहीं है। हम उसके क्रिटिसाइज नहीं करते, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू देम, यू शुड नॉट। बट वी आर इंडियन, हियर वेदर इज डिफरेंट है। यहाँ पर प्रसाद पाने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। कैसे हाथ धोगे? पानी से हाथ धोना चाहिए। हाँ, आफ्टर टेकिंग प्रसाद यू हैव टू वॉश योर हैंड विथ। जगन्नाथ भी प्रसाद पाने के बाद क्या करते हैं? हाथ। उसमें लिखा है 21 घंटा जो है जगन्नाथ जी के हाथ सूखता पानी से सूखते हुए गिले रहता है, पानी से गिला रहता है। मैंने प्रसाद के बाद हाथ धोया, इतने समय एक भक्त आ गया है, फिर प्रसाद बना पड़ता है। क्योंकि जगन्नाथ जी ने ये वायदा कर लिया था है, ये कोई भी वक्त मुझे मेरे पास आ जाए, जो कुछ भी देंगे मैं ग्रहण करूंगा। है ऐसे नहीं है प्रसाद पा लिया और रुमाल उठाया और ऐसे और फिर पकड़ में रख दिया, है ऐसे नहीं। प्रसाद पाने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए पानी से। जगन्नाथ जी के ऐसे ही लिखा है। उसने इंद्रदुम्न महाराज भी वही वायदा कर दिया है, प्रभु को भी कोई भक्त आ जाए है, जब आपको देंगे आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ठाकुर जी का ऐसे ही होगा है। ये देखो ये जगन्नाथ जी है, यहाँ पर चक्र तीर्थ है, देखो कितने सुंदर स्थान है। यहाँ पर भी सत्य, यहाँ पर चक्र आकर के गिरे। ये स्थान जो है बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है। यहाँ पर जगन्नाथ जी के वास्तव जो है मूल प्राकट्य स्थान है ये, समझ ना है ये, इसलिए कि चक्र तीर्थ है ये। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, समय हो गया, उधर पर जाना पड़ेगा नहीं, हरी कथा नहीं होगा उधर है। क्या हो रहा है उत्तम, क्या हो रहा है उधर है? तो भक्त लोग कहाँ चले गए? अरे इधर कहाँ आ गए? ये तो हमारे सब है, हमारे साथ अच्छा चलो उधर भी थोड़ा हरी कथा बोलेगी। कि दूसरे के अन्न खाओगे ना हरी कथा निकल। हमारे गुरुदेव कहते थे दूसरे के अन्न खाओगे ना हरी कथा, बिना हरी कथा खाओगे ना तुम्हारा हजम नहीं होगा। हाँ, इफ यू नॉट स्पीक हरी कथा, यू विल नॉट लिसन हरी कथा, इट प्रसाद, योर स्टोमक विल बी डिस्टर्ब। और समझ नहीं, किसी को अन्न खाना है ना भगवत कथा श्रवण कीर्तन के बाद खाना चाहिए। हमारे गुरुदेव भी कहते थे है, हमारे गुरुदेव कहीं कि सिलीगुड़ी में जहाँ जहाँ पर जाते थे ना, बिना हरि कथा देव कहते तुम्हारे घर में हरि कथा नहीं हुआ प्रसाद नहीं पाऊंगा, है कम से कम 10 मिनट हरि कथा बोलेंगे। हाँ भाई जहाँ पर जाओगे ना हरि कथा सुनो और हरि कथा सुनाओ तब प्रसाद पाओ। नहीं तुम्हारे कथा है नहीं तो उसके लिए ऋणी हो जाओगे। इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे, देना पड़ेगा तुम्हें। आज समझ में, भैंस हो करके गाय हो करके सारे खून को दूध बना करके उनको पिलाना पड़ेगा। कथा सुनाया ना,
एक सेठ जी था, कथा सुन लो अच्छी तरफ से। एक सेठ जी था, बहुत उदार था वो। कोई भी व्यक्ति आ जाते, दरिद्र व्यक्ति आ जाते थे, उसको वो पैसा देता था। एक कोई आते थे, कहते महाराज, एक आते थे, सेठ जी मेरे बेटी के शादी कराना है, कुछ पैसा चाहिए। सेठ जी बोले जा मुनीम से ले लो। हाँ, मुनीम के पास एक कॉपी था, उसमें लिखना पड़ता था, दस्तखत करना पड़ता था, ये पैसा तुम इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो देने वाला है वो ले देते, कहते थे इस जन्म में दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दे दूंगा। जो देने वाला नहीं है वो तो नास्तिक है ही है। गीतम ऋणं कृत्वा गीतम पिबेत जावत जीवेत तावत सुखेत भुस्सीभूत देहस्स कुतः पुनरागत। ये नास्तिक लोगों के वचन है ना। बोले शरीर जब छाई भस्म हो जाएगी, कौन किसके पास आएगा ऋण चुकाने के लिए? बेकार की बात है। लूटपाट करके खा लो, छल कपट से भी ले लो, किसी भी प्रकार से ले लो, तो इसलिए वो लोग लिखा देते कि अगले जन्म में देंगे। चलो एक चोर आ गया, दुष्ट था, देखे तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर झूठ मूठ करके तो पैसा मिलता है इससे। इसलिए सेठ जी के बोले, सेठ जी मुझे कुछ पैसा चाहिए। सेठ जी बोले जाओ मुनीम के पास लिखवा दो, ये इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। वो चोर तो दुष्ट ही था, उनको देना तो नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या लिखवाया? अगले जन्म में दे दें। चलो सेठ जी उनको पैसा दे दिया, वो चल गए। मन ही मन विचार करने लगे, सेठ जी की जो पैसा तो बहुत है, रात में आकर के सब लूट करके लेकर जाता हूँ। किंतु देखो वो चोर जो है कुछ भाषा जानते थे, पशु के भाषा जानते थे। जैसे आपने फ्रेंच भाषा सीख लिया, पुर्तगाल भाषा सीख लिया, अनेक भाषा सीख लेते हैं ना। उसे चोर जो है वो कुछ भाषा, गायों के भाषा, पशु के भाषा सीख लिया था। और रात के समय जहाँ पर वो गाय आदि बंद करके रखते हैं ना, इसको क्या बोलता है? तबेला ना हवेला, तबेला बोलते हैं। वहीं पर जा करके वो छुप करके बैठे रहे, छुप करके बैठे रहे। एक रात हो जाए, गंभीर रात हो जाए, जब सब सो जाएंगे तब वो सेठ जी के सारे क्या बोले तिजोरी सब करके ले जाऊं। भाई वहां पर बैठे हुए थे, रात 1 बज गया, मच्छर ऐसे उसके काट रहे थे। और इतने समय एक गाय, एक भैंस दूसरी भैंस से कहने लगे, बोले तू कौन सा? एक व्यक्ति था और ये सेठ जी के पास आ गया था, झूठ मूठ करके मैंने पैसा लिया। सेठ जी ने बोला तू पैसा अगले जन्म, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? मैं तो नास्तिक था, देने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कहा अगले जन्म में दूंगा। वचन दे दिया ना, अगले जन्म मैंने पैसे लिया, इसलिए इस जन्म में मुझे क्या होना पड़ा? ऐसा होना पड़ा। और मेरे सारे खून जो है, रक्त को खून जो है अभी दूध के होकर के सेठ जी को मैं पिला रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ भाई, इस जगत में किसी को चीटिंग बाज नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर से देखते इससे तो पैसा ले लिया झूठ मूठ करके, इससे खा लिया, उससे दे दिया, वो कर दिया। भाई कोई किसी को देने वाला नहीं है, किसी को लेने वाला नहीं है। सब लिया तो देना पड़ेगा, और दिया तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रही नहीं? झूठ कहीं पर नहीं चलेगा। दूसरे से हड़प लिया तो देना ही पड़ेगा, किसी के खाया तो अगले जन्म तुमको खिलाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहार। तो कहेंगे महाराज इसको खाएंगे नहीं, मैं क्यों दे? अरे नहीं, ये महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद ग्रहण करने से तेरा 14 पुरुष क्या हो गया जाएगा? उद्धार हो गया। 14 पुरुष एंड योर 14 फादर्स दे विल डिलीवर फ्रॉम द, यू हैव टू टेक महाप्रसाद। बोलो महाप्रसाद की। हाँ, इतना ही मैं कहता हूँ भाई, किसी के घर में जाओ, महाप्रसाद भी ग्रहण करो। क्या करना चाहिए? हरि कथा बोलो और हरि कथा सुनो। यदि हरि कथा नहीं श्रवण किया, हरि कथा नहीं बोला, तो प्रसाद लिया आपको फल नहीं मिलेगा। प्रसाद खाने की भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, समझ में आया? मेरे गुरुदेव ऐसे कहते थे, प्रसाद खाने की भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए हरि कथा कीर्तन करना पड़ेगा, हरि कथा सुनना पड़ेगा, और खिलाने में तुम्हारा फायदा भी नहीं होगा यदि हरि कथा नहीं सुना। अरे इतने खिलाने वाले तो कितने सेठ जी बैठे हुए हैं वृंदावन में, हैं? सेठ जी भी बड़े सेठ जी बैठा हुआ है खिलाने के लिए, कंबल दान करने के लिए। कंबल समझते हो कि नहीं? हैं? दान करने वाले, 100-100 रुपया देने वाले कितने व्यक्ति, उससे तुम्हारे को फल नहीं होगा।
क्या करना पड़ेगा? दातार गृहीता को क्या करना पड़ेगा? दान देने वाले और दान लेने वाले के क्या करना पड़ेगा? हरि कथा श्रवण कीर्तन करना। नहीं ले तुम दान तो कर दिया, सुना ही नहीं कुछ, और हरि कथा सुना ही नहीं है, हैं? तुम बहुत अच्छी तरह से खिला पिला दक्षिणा में दे दिया, कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ फल नहीं मिलेगा। सुन रहे कि नहीं? हैं? जो खिलाने वाले हो उसको क्या करना पड़ेगा? हरि कथा श्रवण। और खाने वाले को क्या करना चाहिए? उसको भी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, बोलो चक्र तीर्थ की जय, जय जय श्री राम। जय। ये चक्र तीर्थ क्या है? चक्रवर्ती लीला को चक्र तीर्थ कहा जाता है। ये रास लीला जो है ये चक्रवर्ती लीला कहा जाता है। भगवान के जितने जो लीलाएं हैं, समस्त लीला की मुकुटमणि स्वरूप क्या है? रास लीला। जय जो जल रास सर्व रस सार भावे जहाँ ब्रज। ये चक्रवर्ती चक्र तीर्थ के एक मूल तात्पर्य क्या है? चक्रवर्ती लीला। जहाँ पर देखो गुरुदेव की कथा जो है, गुरुदेव अब प्रकट होने के एक दिन पहले यहाँ पर वो बरामदा है ना, आप जाएंगे ना, वहीं पर गुरुदेव खड़े हुए थे और गुरुदेव उंगली निर्देश कर लिए चक्र तीर्थ है, और महाप्रभु की लीलाओं की कथा स्मरण करने लगे और स्मरण करने लगे। महाप्रभु भी गंभीरा से निकल करके आगे और जमुना क्या बोले समुद्र के जमुना समझ करके यहाँ पर कूद गए और वहीं पर तैरते तैरते चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आ गए हैं। ये चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, किंतु वो लीला क्या है? चक्रवर्ती लीला कहा जाता है, रास लीला है। ये जगन्नाथपुरी में जो विप्रलंब के वास्तव ये स्थान है। महाप्रभु के विचार के अनुसार ये जगन्नाथपुरी क्या स्थान है? विप्रलंब विरह के स्थान है। विरह भजन जो है ये साधक के लिए अतीव जो है उन्नत भजन कहा जाता है। क्यों? हमारे हृदय में जब तक विरह नहीं हो, विरह अग्नि जब तक नहीं हो, तो वे संसार वासना कैसे दूर है? जैसे आग क्या करता है? सोने के अंदर में जितना वो रहता है, क्या बोलते हैं? तपाया जाता अशुद्धि वस्तु इम्प्यूट रहता है, उसके निकाल कर से शुद्ध सोना को जैसे निकालता है, उसी प्रकार विरह रूपी अग्नि है के द्वारा साधक के हृदय में काम क्रोध आदि जितने भी मैल को क्या देते हैं, सब दूरीभूत कर देते हैं और शुद्ध भाव को प्रकट करता है। इसलिए विप्रलंब भाव में भजन ये हमारे चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की दर्शन कराया, कैसे विप्रलंब में भजन करना है। न धनंग न जनंग सुंदरिंग कवितांग वा जगदीश कामये मम जन्म जन्मश्री भवता भक्ति अहितुकी है। ये समस्त विप्रलंब भावना को चैतन्य महाप्रभु दर्शन करें। अभी चलते हैं यहाँ पर दो शब्द बताएंगे हरि कथा है। अभी तो 8 बज गया है, तो जाकर के थोड़ा दूर करके हरि कथा सुनेंगे और महाप्रसाद भी ग्रहण करेंगे। ये लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, मुझे बुलाया नहीं तो जाए कैसे? चलो गौर प्रेमानंदे, नहीं बुलाया तो जाना चाहिए। हाँ सब लोग दान कर दो, एवरीबॉडी गिव सम डोनेशन। दे दिया पहले, दे दिया पहले। अरे